tips. As Vanchar asked me to do complete practical of this, so we'll do that. Okay, and let you know what are the possible error in this case. Okay, so let me start with the Spring initializer. So basically Spring initializer में हमने क्या किया था, we have done, we must select the Java and then the version, and here we need to do is to just check from here, go to module 5. Okay, so to complete this exercise, you must stick with, for the first time, you must stick with the same application name and all. But when you are completing this, then you can do practice with your own name and with your own specification. Okay, but for the first time, you must go with the same name. ओके लाइक यहाँ पे आपको बताया हुआ ग्रुप आईडी क्या देना है, दैट शुड बी com.mycompany.shop web services. So just copy from here. Okay, otherwise you guys can check also from here. Okay, so go to here and then paste it over here. Similarly, go for second soap, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर पूरे स्टेप्स भी फॉलो करोगे तब भी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कि एरर्स बहुत आ रही हैं, बिकॉज व्हेन वी आर creating or when automatic function will be created, so it will always take what, it will always take the big data in big integer, that create a problem for the integer value. So we have to rectify that. Just a second, let me know you how we can do that. So we first need add GPA, then there is a dependency web services, Spring web services. Yeah, Spring web services. उसके बाद एक और थी D2 H2 sorry, H2 database SQL. Okay, now click on 8, then bar file and then generate it. So it will generate a file like this. So after applying this, what I have done, so and what are the error being executed. So I already told you in the previous session or last session that we have all these files in this particular folder, not in example files. So when we are creating this, just copy and paste things from here, like उसने पहली बार बोला है. So complete these will be the first thing that you need to run whenever you import this. Do one thing, just make a recording. uh, let's record this so that you guys can do that. Okay, so अब किया क्या है हमने, I'm creating 3 files. First is request XML within resource folder, mind it, within resource folder. I'm creating this and copy this content from where, copy this content from the here. For the first time when you know import this file, I have already told you how we can import. So click over the import, just a second. So यहाँ से existing Maven project next and then select the file. Hello.
Sorry guys for the interrupt. So I have copied these first of all. We copy this get course detail response. ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए हमने ये कॉपी करना है और रिस्पॉन्स के लिए हमने ये कॉपी करना है. Okay, after copy this we need to create what? We need to create a XST file, जो नेक्स्ट पॉइंट है. ठीक है, वो XST पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से कॉपी कर लो. ये देखो मैंने कंटेंट यहाँ से कॉपी करा है, ये आपने उसके अंदर कॉपी कर देना है, रिस्पॉन्स के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर एंड रिस्पॉन्स के अंदर, दोनों को कॉपी कर दिया. उसके बाद हमने क्या करना है, ये जिस तरह से यहाँ पे करा हुआ है ओपन करके. ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद आपने XST फाइल बनाई थी. ठीक है, XST फाइल में हमने सारा का सारा ये वाला कंटेंट डाल देना है, दिस वन पूरा का पूरा कॉपी कर देना है. जैसे ही आप ये वाला कॉपी करोगे और उसके बाद मैंने आपको बताया था डिपेंडेंसी कॉपी करोगे. ठीक है, जैसे ये सारा कॉपी हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिपेंडेंसी कॉपी करनी है. डिपेंडेंसी में आपको, तो ये कॉपी करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल एस करते हो ना, ठीक है, ये डिपेंडेंसी आपकी कि आपने डिपेंडेंसी बनानी है. ओके, ये आपकी कॉन्फ़िगर. तो ये आपको कहाँ पे कॉपी करनी थी, मैंने बताया था कि आपको pom.xml में कॉपी करना था. आपको एप्लीकेशन भी चला के दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मैंने चेंजेस करे थे, तो जाके वो काम खत्म हुआ था. तो मैंने pom.xml में मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए थे, आपको बताया था कि मैंने पूरा एज इट इज कॉपी करके बस एक चीज चेंज करी थी, स्कीमा फाइल. ठीक है, नाउ इट इज चेंज. आफ्टर दैट वी नीड टू गो फॉर after changing this we will get what? We will get these files automatically created. Okay, तो ये पूरी उसकी पॉम फाइल है. तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो इन केस मतलब आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो. अब यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको एंड पॉइंट कन्फिगर फाइल बना. यस, वन मोर थिंग, मैंने अपने जो कोर्स गेट कोर्स था, ठीक है, ये कुछ भी था, इन्होंने एक इसके अंदर सोप करके एक और वो बना रखा था, मतलब प्रोजेक्ट बना रखा था, उसके अंदर बनाया था. तो आप मेरे वाले अगर पैकेज देखो तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे पैकेज ले रखा सोप वेब सर्विसेज सोप मैनेजमेंट, तो इन्होंने बोला हुआ कि सोप सोप के साथ करो. तो जैसे ये है ना, सोप मैनेजमेंट और उसके अंदर भी एक सोप पैकेज बना रखा था, तो मैंने ये नहीं बनाया हुआ था. इसलिए आप भी ध्यान रखना अपने पैकेज का नाम, कि जो पैकेजेस का नाम है वो इजीली हो जाए, तभी आपकी बाकी की क्लासेस जो है वो आ पाएंगी. ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब राइट क्लिक करके फ्रॉम हेयर राइट क्लिक करके न्यू देन क्लास बनानी है और उसका नाम क्या दे देना है आपने, कोर्स डिटेल एंड पॉइंट. एंड देन what you need to do is to copy the content from here. ये आप सारा कॉपी करोगे और वहां पे पेस्ट कर दोगे. सिमिलरली वी नीड टू क्रिएट वन मोर फाइल, वेब कॉन्फ़िगर फाइल. ठीक है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन होगी सारी, वो भी आपने सॉफ्ट वाले उसी फोल्डर में बनानी है. ठीक है, वेब कॉन्फ़िगर फाइल, और इसमें आप सारा बताओगे कि विजुअल फाइल जो है वो किस वाले फोल्डर में होगी या कहाँ पे होगी. तो इससे क्या होगा, इससे हमारा विजुअल फाइल बन जाएगी, जिसके थ्रू मैंने आपको कल भी बताया था, आपको ये वाली डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी करनी है. ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म फाइल में फिर से पेस्ट करनी है. तो यहाँ से आप दोबारा ओपन करो, तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी में जहाँ पे भी आपको डिपेंडेंसी वाला वो फील्ड दिखे, ये देखो यहाँ स्लैश से डिपेंडेंसी का एंड है, तो ये वाली डिपेंडेंसी स्टार्ट हुई, यहाँ तक उसका एंड हो गया. तो ये मैंने ऐसे इसको पेस्ट करा हुआ जो वहां पे मुझे मिली थी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने फिर से अब वेब कॉन्फ़िगर कोड को एक्सपोज करने के लिए मैंने ये चीज़ ऐड कर दी, ऐड ऑन कर दी उसी फोल्डर में और उसी पेज पे. यहाँ पे एरर आ रही थी,
यस, ये एरर आ रही थी जब हम क्या करते थे, पूरे फॉलो करते थे पाथ को, तो ये वाला पाथ डायरेक्टली कहाँ से उठा रहा था, इट विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट रिसोर्स वाला पाथ, source main dot resource. So that's why we are putting all these files in this particular group. Clear? उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ये आपको इसको एक बार रन करना है, तो आपकी एक विजुअल फाइल क्रिएट हो जाएगी और लोकल होस्ट लोकेशन फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, जो मैंने कल आपको बताया भी था। आप यहाँ पे कॉपी करो, देन गो टू योर, पहले आप इसको रन कर लो, अगर वो ऑलरेडी रन है तो अभी वैसे रन नहीं है तो इसको हटा दो। सो ऑफ कोर्स ये वाली फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली पहले ही बनी होती है, ठीक है, बस आपको इसको क्या करना होता है, रन एज जावा एप्लीकेशन करना है। तो लाइक यहाँ पे उसने बता दिया टॉम कैट स्टार्टेड एट पोर्ट नंबर दिस, सो यू गाइस कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर यूआई and open in browser. तो यहाँ पे मैंने आपको विजिटर बोला था कि एक बार डाउनलोड कर लेना, तो ये मैंने 3 कोर्स ऐड और कर लिए हैं, बट जो आपका फर्स्ट कोर्स होगा, फर्स्ट वाला जो आएगा वो एक ही आएगा फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था यू विल असाइन सम वैल्यू ओवर हियर, 1 असाइन करके गो करा तो विल गेट द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब ये चीज आ गई मेरे पास, रिस्पॉन्स आ गया, एक का बन गया। तो एक बनाने के बाद उसने बोला था कि दूसरा डिजाइन करो जिसमें हम वैल्यूज डालेंगे। अब जब वहां पे प्रॉब्लम आती है, जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें मेनली प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं बताने लगा हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ तक आपका इजीली हो जाएगा जितना मैंने अभी तक बताया है, जो मतलब मेन था कि हमें उन फाइल्स को उठा के रिस्पॉन्स, कोर्स डिटेल एंड एक्सएमएल फाइल इनको उठा के रिसोर्स वाले फोल्डर में रखना है, बाकी आप पूरा स्टेप्स फॉलो कर लो, आपका काम चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको वैल्यू जो है वो दोबारा से नई वैल्यू जनरेट करवानी, मतलब एक नई ऑप्शन जनरेट करवानी, जैसे यहाँ पे मैंने जनरेट करवा रखी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जनरेट करवा रखी है। अगर मैं विजुअल खोलता हूँ तो ये 2 वैल्यू, गेट ऑल कोर्स डिटेल एंड डिलीट कोर्स डिटेल, ठीक है। अब वहां पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि ये कोर्स डिटेल्स है ना, ये सेट आईडी जो है इट विल ऑलवेज टेक अ वैल्यू एज अ बिग इंटीजर, ठीक है। और हमें क्या करना होता है, हम इसको चेंज करके इंटीजर में लेके आते हैं। तो जहां पे भी आपकी गेटर सेटर, जब भी यहाँ पे एरर आएगी ना, आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसके जो गेटर सेटर होंगे ना कोर्स डिटेल्स में जाके, ये है सेट आईडी, गेट आईडी, सो हियर व्हाट यू नीड टू डू इज टू चेंज, यहाँ पे पहले यहाँ पे आएगा बिग इंटीजर, so you guys need to change over here, what you need to change over here, integer, same you need to change is यहाँ पे भी आपको रिटर्न टाइप भी आपको इंटीजर करनी है, यहाँ पे भी क्या होगी, बिग इंटीजर होगी, सेम यहाँ पे भी बिग इंटीजर होगी। तो मतलब जहां जहां आपको बिग इंटीजर मिलता जाएगा, ये देखो आपको लिखा भी हुआ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो बिग इंटीजर से रिलेट हो रहा है, सो आपको बस यहाँ पे क्या चेंजेस करते जाना है, इंटीजर में उसको लेके आते जाना है, या तो सारा कुछ बिग इंटीजर में कर दो या फिर सारा कुछ जो है वो इंटीजर में कर दो, ये बात याद रखनी है आपने मेनली। क्लियर? तो जैसे ही आप ये चीज मतलब डिजाइन करना स्टार्ट करोगे ना, यहाँ इसके बाद का जो कोड है,
whenever you create this code, मतलब ये तो आपका हो गया. After this, when you are going to create this file course, ठीक है, कोर्स में अपने गेटर सेटर सेट करें. ये देखो सारे गेटर सेटर सेट करे हुए हैं. दीज आर इंटीजर टाइप. दैट्स वाई वहाँ पे वो बिग इंटीजर होगा, यहाँ पे हम अपने गेटर सेटर जो बनाएंगे वो इंटीजर टाइप होंगे. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल प्रोड्यूस व्हाट, इट विल प्रोड्यूस सम इनकम्पैटिबल टाइप एरर. इनकम्पैटिबल टाइप एरर आएगी. आपको वहाँ पे चेंजेस करने हैं बस. यहाँ पे एरर हमेशा आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक आप वहाँ पे उनको इंटीजर नहीं करते. जैसे यहाँ फाइंड बाय आईडी, यहाँ पे इंटीजर होगा, वहाँ पे बिग इंटीजर होगा, तो आपके यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा. जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड वहाँ पे 3 मेथड आएंगे. चेंज द मेथड, लेट मी शो यू जस्ट अ सेकंड. हाँ, मेरे को एक आधा चेंज करने तो यहाँ पे. ठीक है, देखो यहाँ पे कोर्स डिटेल में आना शुरू होगी. तो ये जैसे ये आ रहा है सेट आईडी. ओके, सेट आईडी में नीचे 3-4 चीजें दे रहे हैं. रिटर्न टाइप, ठीक है, गेट आईडी रिटर्न टाइप, टाइप ऑफ गेट आईडी टू बिग इंटीजर, ये सेट आईडी. तो यहाँ पे रिटर्न पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं जब जाके यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, रिटर्न टाइप ऑटोमेटिकली उसकी भी चेंज हो गई है. तो मुझे यहाँ पे इसको इंट करना है. ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने चेंजेस करे होंगे मुझे वहां पे जाके उसको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको करा, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इंट करना पड़ेगा. तो ऑटोमेटिकली एरर रिमूव हो गई वहां से. तो मेनली ये वाली जो एरर है ये बहुत ज़्यादा मतलब आएंगी जब जब आप नया नया बोर्ड बनाते जाओगे. जैसे ये वाला भी जो कोड चल रहा है, दैट इज फॉर फाइंडिंग ऑल द वैल्यूज. ठीक है, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये तो हो गया सिर्फ पर्टिकुलर एक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. नाउ लेट्स वर्क विद ऑल वैल्यू. गो फॉर दिस. सो गेट ऑल कोर्स डिटेल्स, व्हेन यू क्लिक ऑन इट, ठीक है, एंड क्लिक ऑन गो, सो यू विल गेट ऑल कोर्स डिटेल्स. 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 के पे, सब सबकी डिटेल आ जाएगी आपके पास. ठीक है, और वो कौन सी आ रही है, जो हमने यहाँ पे कोर्स डिटेल बना रखा है एक, ये वाला. 1 पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट, मैवन. सो दिस विल बी ऑन द ब्राउजर. ये आप चेक कर सकते हो. 1 स्प्रिंग 10 स्टेप्स. क्लियर हुआ बेटा आपको सबको? मतलब ये सिर्फ जो जो एरर मैंने अभी तक फाइंड आउट करी है, ये मैंने वो बताई है आपको. इस तरीके से आपकी एरर जो है वो रेक्टिफाई हो सकती है. क्लियर? तो आप अगर देखो तो मैंने कहाँ तक रेक्टिफाई कर लिया, दैट्स वाई वो जो मेरा कंटेंट है वो तीनों वैल्यू शो कर रहा है. अभी तक तीनों वैल्यूज ही आ रही हैं. मतलब पहले 1 बाय 1 मैंने एक एक करके कोर्स ऐड करता गया, यहाँ पे वैल्यूज वैसे वैसे बढ़ती गई. और प्रॉब्लम ये है कि आप अगर सोचोगे कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा. वेन एवर यू क्रिएट वन मोर फंक्शन, जस्ट स्टॉप कंसोल. यहाँ पे रेड बटन से आप कंसोल को स्टॉप करोगे, so that whenever we rerun this program, so it will generate a new visual file. क्योंकि जब तक विजुअल अपडेट नहीं होगी विद द हेल्प ऑफ रनिंग प्रोग्राम, तब तक वो आपका जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे. तो दोबारा से आपको बार बार इसको रन करना पड़ेगा. जितनी बार आप विजुअल जितनी बार आप एक्सएसटी और एक नई क्लास बना के उसमें काम करोगे. जैसे अभी मैंने डिलीट का करा है, तो मैंने डिलीट का बना लिया. ठीक है, तो डिलीट का भी वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं डिलीट के लिए एक नई वैल्यू डालूंगा और वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मेरा ऑलरेडी रनिंग भी होगा ना, मतलब आपने स्टॉप नहीं करा होगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, फेल टू स्टार्ट बिकॉज सर्वर इज ऑलरेडी
application is already running on this port number. So you have to stop this first, then rerun this program so that your visual file will be updated. ठीक है, इसके बाद यही स्टेप फॉलो करते जाओ बस। इसका लास्ट वाला पॉइंट रह गया है, वो मैं आपको कल पूरा कंप्लीट ये वाला टास्क कंप्लीट करवा के आपका ये सॉप एप्लीकेशन वाला जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक पूरी कंप्लीट वीडियो मैं एक नई वाली एप्लीकेशन बना के पूरी कंप्लीट किसी दूसरे नाम से पूरी कंप्लीट वीडियो आपको पास भेज दूंगा, आप इसको फॉलो कर लेना। क्लियर है सर? इंपोर्ट करके यस, जो एरर आएंगी जहां तक मैंने अभी तक बताया है, तो ये एरर मैंने सॉल्व करके ही आपको, क्योंकि ये चीजें डिस्प्ले ही नहीं होती वंचेस, ये जो मैं आपको बता रहा था ना यहाँ पे विजुअल में, तो ये चीजें डिस्प्ले ही नहीं होंगी अगर एरर होगी या फिर रीरन नहीं किया होगा। तो यहाँ तक मैंने एरर सॉल्व करके बताया है, और अब बस एक्सेप्शन का रह गया है। टॉपिक जो है वो मैं एक बार पूरा सॉर्ट आउट कर लूँ, क्योंकि ये पूरा जो प्रोग्राम है वो बहुत लंबा प्रोग्राम है। तो अब मेरा जो पॉइंट्स रह गया वो रह गया एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कि एक्सेप्शन के टाइम पे क्या क्या एरर आपको, जैसे यहाँ पे वैल्यूज दे रहा है ना कि आप गो पे पोस्ट करते हो तो आपको वैल्यू दे रहा है, और अगर इन केस मेरे पास 3 पे कोई कोर्स नहीं है, we don't have any course over the 2 or over the 3, or we provide some wrong id, then what will happen, और वो एरर क्या होगी, तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आएगा। तो एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड रह गया बस, वो मैं एक बार उसकी एरर सारी निकाल लूँ, फिर आपका जो ये 5th वाला पॉइंट है ये कंप्लीट है। यू गाइस कैन रन दिस कोड, क्योंकि मैं एक आपको फिर बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये सारी एरर सॉल्व हो जाती है तो मैं एक बिल्कुल पूरे फ्लो में एक वो वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी, आप परफॉर्म कर पाओगे। मैं पूरे एक फ्लो में एक वीडियो बना के आपको पेश कर दूंगा, और फिर आप क्या करोगे, उसको रन करके देख लेना। ठीक है, क्लियर? ओके ओके, मैं अभी कर देता हूँ। सॉरी, वो उसमें है, मैं कर देता हूँ अभी। ठीक है, एक बार इसको ट्राई कर लो सारे, जितना मैंने अभी तक बताया, एक बार इतना ट्राई कर लो, जो जो मैंने आपको बताई हैं चीजें। बस आपको कुछ नहीं करना, मैं एक चीज और भी बताता हूँ। हाँ वंशज, वो पता क्या, पहले मैं इसी के स्टेप्स को फॉलो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ से ज्यादा हेल्प मिलेगी कॉपी पेस्ट करने में। खुद का बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यहाँ से कॉपी पेस्ट करोगे तो ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं आपको पूरा पहले बोल रहा हूँ कि पहले जब पहली एप्लीकेशन बनाओगे दैट शुड बी विद द हेल्प ऑफ दिस। जब आप नेक्स्ट एप्लीकेशन डिजाइन करोगे उसमें आप क्या कर सकते हो, इस चीज की हेल्प ले सकते हो बनाने में। मैं एक बार सारी वर्कशीट ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, मैं सारी ही कर देता हूँ। लास्ट डेट मैंने आपको बता रखी कि आप उस तक सबमिट कर देना। ठीक है, और यस, प्री एंड पोस्ट टेस्ट इज अवेलेबल ऑल्सो। ठीक है, 9th वाला मैं कल ही करूंगा। ठीक है, 9th या 10th दोनों मैं कल ही ले लूंगा, कल लैब के टाइम पे। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको तो मैंने चेंज कर दिया वो डेट वगैरह। तो 10th और उसको मैंने ऑन कर दिया। प्री और पोस्ट मैं कल ही लूंगा, और आज के लिए वो सिर्फ 8th वाला अवेलेबल है आज 11 11 o'clock तक, तो आप उसको अटेंड कर लो, पोस्ट को भी और प्री को भी।